ठीक है, perfect. So, a very good evening to all of you. I hope you're doing well, and let's start with today's topic. It's a small request to all of you. Please turn on your cameras if you can. Uh, it makes things a bit easier for me also. While as I speak and as we're discussing, Vivek, acha, I see two IDs with your name. Like, why it is so? Yeah. So we were doing this topic called time value of money, and in that, as I always said, there are two things, which are chapter one and chapter two. Okay, so those two topics are merged together, and then we are studying them holistically as time value of money. In the last class, we had discussed till the concept of return and nominal return, where we discussed ki how nominal return is being created, how it is defined, and all those sort of things we had discussed in the last class. Okay. Okay. Now, in today's class, we shall, touch upon some very important topics from exam point of view. Okay, and we shall also discuss certain concepts which are very much required in the overall scheme of things, and these are the concepts which shall be used again and again across the syllabus in different methods. So, आज की class बड़ी important हो जाती है from that point of view. ठीक है. So now let's first start with LOSB again. Although we had covered a bit, but आज मैं थोड़ा सा इसको वापस start कर रहा हूँ. ठीक है. LOSB discuss starts with the discussion of the concept of holding period return. Starts with the discussion on the concept of holding period return. HPR. ठीक है. HPR means holding period return. So let's say that there's a stock for 100 rupees. There's a stock for 100 rupees, and this stock gave you a dividend of 1 rupee, and the year end value of the stock is, let's say, 120 rupees. ठीक है. 100 रुपए का स्टॉक था, आपको 1 रुपए का डिविडेंड मिला स्टॉक पे, और स्टॉक की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी हुई? 120 रुपए. दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. नाउ इन दैट सिचुएशन, इफ दैट इज द गिवन सिचुएशन, then now my question to you is, how much money have I made? How much money have I made in this given time frame? तो उस केस में मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा उसको? ठीक है. So 120 is the year end value of the stock minus the value which we started with was 100. So हमने गेन कितना लिया? 20 रुपए का लिया, प्लस 1 रुपए का मुझे डिविडेंड मिला. ये सब मुझे किस पे मिल रहा है? 100 रुपए पे into 100. So this becomes how much? 21 divided by 100 into 100, simply 21%. This is my holding period return. The small basic concept is clear to everyone. Make sense? दिस इज नोन एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न. की स्टॉक जब तक था तब तक आपने उसमें कितना पैसा कमाया, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न. क्लियर? ओके. नाउ आफ्टर होल्डिंग पीरियड रिटर्न वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज रिटर्न. ठीक है. सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रिटर्न. अच्छा, चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एंड आई थिंक दिस शैल बी अ गुड स्टार्टिंग बिट फॉर दिस कॉन्सेप्ट. कि लेट्स से मैंने एक फंड में इन्वेस्ट किया, एंड उस फंड ने फर्स्ट ईयर रिटर्न दिया 5%, सेकेंड ईयर रिटर्न दिया 7%, और थर्ड ईयर रिटर्न दिया 10%. ठीक है. मैंने एक फंड में पैसा डाला, उसका फर्स्ट ईयर रिटर्न था 5%, सेकेंड ईयर रिटर्न था 7%, थर्ड ईयर रिटर्न था 10%. कैन यू टेल मी द एवरेज रिटर्न ऑफ द फंड? एवरेज रिटर्न बता सकते हो कि फंड का कितना था? एनीवन? व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द फंड? 7.33. Okay, so simply what I can do, 7 plus 5 plus 10 divided by 3, 22 divided by 3, yani 7.33 or 7.30, like Vivek mentioned. This is how we calculate the average, right? Average ऐसे निकालते ना, sum of values divided by the number of values. But this is a wrong method. ये मेथड गलत है. वो मेथड गलत क्यों है? उसका रीजन क्या है? देखो, ये क्या है?
दीज आर फंड रिटर्न्स। और फंड के केस में ऐसा नहीं होता कि आज मैंने 100 रुपए पे स्टार्ट करा, अगर 5% रिटर्न है तो अगले साल कितना हो गया, 105 हो गया। और फिर से ऐसा नहीं होता कि मैं वापस 100 रुपए पे स्टार्ट करूं। अब मैं स्टार्ट कितने में कर रहा हूँ, 105 पे कर रहा हूँ। क्या याद है कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग वाला? 105 पे मैंने 7% कमाया, फिर उसके बाद जो वैल्यू हुई उस पर मैंने 10% कमाया। तो उस केस में ये वाली जो चीज होती है ये बिल्कुल गलत हो जाती है। वो गलत इसलिए हो जाती है बिकॉज दिस मेथड पर्टिकुलरली अज्यूम्स कि तीनों नंबर्स या तीनों रिटर्न्स का जो वेटेज है वो इक्वल है। वो वेटेज है वो इक्वल है। बट अगर हम लॉजिकली देखें तो वेटेज कभी इक्वल होता है क्या? दैट वेटेज इज नेवर इक्वल। और लेट्स से आई कैन पुट इट दैट वे कि दिस मेथड इंट्रिंसिकली अज्यूम्स कि हम हमेशा 100 रुपए के बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? भाई 100 पे 7 रुपए का 7% कमाया, फिर से 100 रुपए से स्टार्ट करा, फिर 5% कमाया, फिर से 100 रुपए पे स्टार्ट करा। If that was the case, this method would have made sense, but unfortunately, that is not the case. But unfortunately, that is not the case. वो नहीं होता। तो ऐसे केस में ये जो हम मेथड लगाते हैं ये बिल्कुल गलत हो जाता है। जब भी हम एवरेज फंड रिटर्न की कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक दूसरे मेथड या एक दूसरा एवरेज निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि सर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे, पहले साल 5% रिटर्न कमाया, दूसरे साल इसी फंड पे कितना कमाया, 7%। तो ये 1.07 हो गया। फिर तीसरे साल इसी फंड पे 10% कमाया। तो टोटल एंड ऑफ ईयर वैल्यू एंड फंड वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स कितनी हुई, मुझे बताने एक बार प्लीज। एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंड आफ्टर 3 इयर्स? 123.50. 123.58। 50. सो दिस इज द एंड ऑफ 3 इयर्स वैल्यू ऑफ द फंड। के 3 साल बाद फंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए का कितना हो जाएगा, 123.58। ठीक है। सो आई एम सेइंग इफ आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज, तो मैं एक ऐसा एवरेज रिटर्न निकालूं 3 साल में जो मेरे पैसे की वैल्यू कितनी कर दे, 123.58। नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर आर एंड यू शैल गेट योर आंसर। द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग, द आर यू आर गेटिंग इज द एक्चुअल एनुअल रिटर्न दैट यू आर मेकिंग, और जिसे हम और फाइनेंस की भाषा में जिसे बोलते हैं हम CAGR। This is the CAGR that you are making by investing 100 rupees and it becoming 123.58 after 3 years. This is a return which you are making on the fund. Is it clear? Aryaman, Madhur, Simran, Vivek, comfortable? Anyone, any questions? Please ask. सिमरन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो एक काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करो। लेट्स से देयर इज अ फंड, there is a fund which produced 5% in first year, 10% in second year, 15% in third year, 20% in fourth year, and minus 25% in fifth year. ठीक है। Calculate the average annual return or the CAGR of the fund. ठीक है। Average annual return or the CAGR of the fund. Please calculate करो। ध्यान सॉल्व करना, इसमें -25% है।
19.54. Okay, I've got one answer which is 19.54. Yes. ठीक है, चलो I'm waiting for others answer also. I'm waiting for answers from others as well. Arman, Madhu, Simran, नहीं हो पा रहा. सिमरन हुआ? नहीं सर। कहाँ पर अटक रहे हो? सर अभी कैलकुलेशन कर रही हूँ। चलो ठीक है, टेक 2 more minutes, 2 3 minutes more. सर इस वाले केस में एक ही प्रिंसिपल को हम बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली देख, भाई फंड है यार. आज मैं फंड में पैसा डालता हूँ तो मैं कैसे डालता हूँ? मैं फंड में को पैसा डाला, फंड रिटर्न निकालता है ना. और सब अगर क्वेश्चन में दो तीन प्रिंसिपल अलग अलग फंड दे रखे हैं तो फिर कौन सा यूज अलग करें. अलग के अकॉर्डिंग होता है फिर वो कौन सा फंड कब आ रहा है. अब मान लो ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में, चलो एक बार पहले क्वेश्चन करवा लेता हूँ, फिर तेरे वाले पॉइंट पे बात हूँ, ठीक है? Okay. ठीक है. सिमरन, मधुर, आर्यमन, नाउ यू हैव टू टेल मी वेयर यू आर स्टक. Where I don't know how to go about it.
You didn't understand the concept? मतलब कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है या क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है? कॉन्सेप्ट सर। कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आर्यमन एंड सिमरन, व्हाट अबाउट यू गाइस? So not getting it. चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आर्यमन, आर यू देयर? I think he answered on the chat box. अच्छा, Guarantee. सर माय आंसर 20 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता है, कहने का मतलब ये है। चलो कोई बात नहीं, समझो। देखो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो बोल दिया करो कि सर नहीं आया समझ में, यू नीड टू रिपीट। देखो, पहली बात समझो कि यहाँ पे हम फंड की बात कर रहे हैं, और फंड में क्या होता है ना, वी आर नॉट स्टार्टिंग विद द सेम बेस ऑलवेज। द बेस अमाउंट कीप्स चेंजिंग एज पर द फंड वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो लेट्स से आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, एग्जांपल के तौर पर समझो, आज मैंने किसी म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करा है, तो क्या होता है, पहले साल उसने 5% रिटर्न दिया, तो मेरा 100 रुपया कितना हो गया, 105। अगले साल फंड ने 10% रिटर्न दिया, तो मेरा क्या हो गया, 105 पे मुझे 10% मिला। ये बात समझ पा रहे हो एवरीवन? आर्यमन, मधु, सिमरन? कंपाउंडिंग। ऑब्वियसली कंपाउंडिंग हो रही है एक तरीके से। मैंने वो वर्ड ही यूज करा था ना कि यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग रिटर्न्स लाइक दी दिस। ये जो लॉजिक था, हम रिटर्न का जो एवरेज रिटर्न है, हम वो इसलिए ही ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमारी कंपाउंडिंग हो रही है। तो आइडियल लॉजिक नहीं बनता कि वो एवरेज रिटर्न हम वैसे निकाल दें। आर्यमन समझ पा रहे हैं? मधुर, सिमरन यस सर। फॉलो कर पा रहे हो? सिमरन समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक। तो कंपाउंडिंग हो रही है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है मेरा यहाँ पे कि आई स्टार्ट विद प्रॉपर बेस। तो मैंने बोला कि यार फर्स्ट ईयर तो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, मतलब शुरू में मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करे, उसमें मुझे फर्स्ट ईयर कितना मिला, 5% रिटर्न मिला, यानी 1 + 0.05। यही करते हैं हम कि आज मैंने कोई एक चीज इन्वेस्ट करी, उसमें मुझे 5% रिटर्न आया, तो क्या करते हैं, इंटू 1 + r⁻n। तो क्या होगा, 100 इंटू 1 + r कितना है, 0.05। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी क्या? मधुर ज्यादा समझ में आ रहा है? सिमरन, आर्यमन, 105 हो गई वैल्यू? ठीक है। अब सेकेंड ईयर समझो, सेकेंड ईयर में को रिटर्न कितना मिला, 10%। तो ये 10% जो कमाया है वो मैंने 100 रुपए पे कमाया है, 105 पे कमाया है? 105 पे, है ना? शाबाश। तो 105 पे कमाया है, तो 105 इंटू 1.1, ये 1.1 में और इजी लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। 100 इंटू 1 + 0.1, 10% जो है, बताओ भाई कितना आ रहा है? 115.5। 115.5, 115.5। सेकेंड ईयर मेरे फंड की वैल्यू इतनी हो गई। थर्ड ईयर 115.5 पे मैंने कितना कमाया, 1 + 0.15। वैल्यू बताना कितनी आ रही है? 132.82। 132.83। 83। ठीक है जी, थैंक यू। फोर्थ ईयर 132.83 पे मैंने फिर से 20% कमाया, तो 0.2। वैल्यू बताओ कितनी आई? 159.39। शाबाश, 159.39। अब फिफ्थ ईयर क्या हुआ, 159.39 पे मैंने कितना कमाया, -25%, यानी 1 - 0.25। बेटा वैल्यू बताओ। टेल मी द आंसर। 0.75 इंटू 159.39 कितना हुआ? 119.54। 119.54। 54। ठीक है। अब देखो, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे,
मैं अब चाह रहा हूँ एवरेज रिटर्न ऐसा मिले, एक आर ऐसा मिले, एक कॉमन आर विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर रिटर्न्स, कि उस पर अगर मैं 5 साल पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो वैल्यू मेरी 119.54 आ जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पीवी कितना हुआ 100, एफवी कितना हुआ 119.54, एन कितना हुआ 5, पीएमटी कितना हुआ 0, और सीपीटी आई बाय बाय। जो ये मेरा आई बाय बाय आ रहा होगा दैट शैल बी माय एवरेज एनुअल रिटर्न विच आई हैव अर्नड इन दिस पर्टिकुलर फंड। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, लॉजिक Yes. समझ में आया? अब आंसर बताओ। विवेक तेरा आंसर गलत था पहले। सही है ना सर, 19.52। अरे पागल, ये फंड की एंड ऑफ ईयर वैल्यू है, 5 साल बाद कितनी आ रही है, हमें तो एवरेज एनुअल रिटर्न निकालना है ना। भाई 100 रुपए तूने आर रेट पे इन्वेस्ट करे 5 साल के लिए, तो वो 119.54 हुए, तो वो आर निकालना कितना होगा? ये बता के भी तू यही आंसर बोल रहा है, 19.54 बोल रहा है। सॉल्व कर इसको। ये तो तेरा एब्सोल्यूट रिटर्न है आफ्टर 5 इयर्स, मेरे को तो एवरेज एनुअल रिटर्न चाहिए 5 साल का। क्या है आंसर? 3.63। आ रहा है सबका? मधुर, सिमरन, विवेक, आर्यमन? साइलेंस इज क्वाइट Yes, स्कैरी। sir. Yes, sir. Yes. एरर आ रहा है मेरे कैलकुलेट। सिमरन? Sir, error आ रहा है, error 05. एरर 05 इसलिए आ रहा होगा कि आप एक चीज भूल गए कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू डालते हैं तो उसमें नेगेटिव साइन लगाना होता है। तो 100 नेगेटिव पीवी एंटर, ठीक है। 119.54 एफई एंटर, 5 एन एंटर, ठीक है। 0 पीएमटी एंटर, ठीक है। और कुछ बचा है सीपीडी आई बाय 3.63, ठीक है। Yes. अगर आप वो 100 पीवी नेगेटिव नहीं रखोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, वो एरर वगैरह थ्रो करेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग। प्लीज खुद से सॉल्व करना है, कहीं इधर उधर झांकना करना नहीं है। उप्स सॉरी, मतलब कुछ लगा, रुको, एवरीवन मीटिंग, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। There's a company whose stock has produced 9.34 to 23.45 and 8.92 in the last 3 years annually. So now you are asked, or now you are required to calculate the compound annual rate of return or compound annual growth rate or the average annual return which the company has produced. Please calculate that.
Done? Everyone done? Arman, Madhur, Simran, where are you stuck? Mine is getting some error. I don't know. I know. Sorry, come again, Arman. My calculation is an error. I think I will need to start the process all over. No, you are doing the same mistake again. 6.8246. You are not putting PV as negative. Yes, I got one answer from Madhur. Yes, please tell me. 8246. 6.8246. Okay. So there's only one answer which I've got till now. Simran, what about you? कहाँ पे हो? So calculation. करो. Take 2 minutes more. This question shouldn't take that much time, यार. If you're clear with the previous concept, तो मुझे सर समझ में नहीं आया. हाँ जी, बोलो. सर जब वाई एक्स यूज कर रहे हैं तो ऊपर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना पड़ेगा ना। एक सेकंड, come again. अच्छा, y raised to power x कर रहे हैं. हाँ. तो ब्रैकेट पहले ओपन करना पड़ेगा पावर के लिए, फिर क्लोज करके आंसर आएंगे। हम लोग कर सकते हैं, but why do you want to even do that? मतलब अगर तू सिंपल अपना जो नॉर्मल थर्ड लाइन है कैलकुलेटर की वो यूज कर ले, आसान है सबसे, है ना? यस क्यों, देख क्या होता है, अब 3 साल है, 3 साल में तू 0.3 लगाएगा और 0.33 लगाएगा ना, तो आंसर में गैप आ जाता यस सर। है ना? इसलिए यार दिस क्वेश्चन आई एम लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ. इस क्वेश्चन में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए. इफ आई इन्वेस्टेड 100 रुपीज, व्हाट इज द वैल्यू आई शैल गेट आफ्टर फर्स्ट ईयर? सिमरन, पहले साल के एंड में क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 6.6. क्या 6.6 का है आपका आंसर? नहीं सर, फर्स्ट ईयर का. 6.6 कैसे है? रिटर्न कितना है? 9.34 है ना?
हम्म तो 1.0934 हो जाएगी। तो मतलब 109.34 इज द वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर। नेगेटिव रिटर्न है ना फर्स्ट ईयर में। अरे नेगेटिव नहीं है भाई वो। अच्छा हाँ सॉरी नेगेटिव है, यू राइट 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 राइट। दिस शैल बी 100 into 1 minus 0.0934। ये बताना मधुरी कितना आ रहा है इसका आंसर। 90.66। 6.41 90.6। my answer. My अच्छा ठीक another है, ओके ओके ठीक है बिल्कुल। 90.664 या 66 राइट 6। है ना। दिस इज द वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर। सिमरन ये वाली चीज क्लियर है क्या, पहले ये बता बेटा। यस सर। समझ पा रही है कैसा आया। नेगेटिव रिटर्न था, 9.34 नेगेटिव था। यस सर। तो 100 into 1 माइनस 0.0934 करेंगे अपन। तो फर्स्ट ईयर के बाद ये वैल्यू आई मेरी फंड की। 100 रुपए लगाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90.66 करेक्ट। सेकेंड ईयर क्या होगा, 90.66। अब मैं पॉजिटिव रिटर्न अर्न कर रहा हूँ कितना, 23.45। तो 1 प्लस 0.2345। मधुर बेटा ये वैल्यू बता कितनी आ रही है यार। 111.92। 111.92। तो सेकेंड ईयर बाद मेरे फंड की वैल्यू कितनी हो गई, 111.92। ठीक है। और थर्ड ईयर 111.92 इंटू 1 प्लस कितना 0.0892 कितना हुआ, 121.903। 121.903। So after 3 years, the value of my fund is this much, 121.903। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे पीवी, उसकी वैल्यू हो गई 121.93। एफवी एन हो गया 3, पीएमटी 0 है, सीपीटी आए बाय बाय। कर सकते हो अब। प्लीज टेल मी द फाइनल आंसर। 6.41 सबका आ रहा है क्या। सिमरन अब समझ में आया कॉन्सेप्ट। नो सर, ज्योमेट्रिक 6.25 80। क्या हुआ सिमरन, अब समझ में आया या भी डाउट है। सर आ गया। आ गया ठीक। तुम्हें कोई चीज समझ में आया 10 बार पूछो, बट प्लीज कॉन्सेप्ट पे ढीले मत रहो कि हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में देख लेंगे। वो वाली चीज मत रखो, क्योंकि देखने वाली चीज कभी नहीं आती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये बार बार मैं हर क्लास में ऑलमोस्ट रिपीट करता हूँ अपने आप को इस चीज को लेके कि देखो सीएफए में 10 सब्जेक्ट है ना। और अभी क्या होता है, जो आप एक एक चैप्टर पढ़ते हो, एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको लगता है हाँ यार ठीक है आसानी तो है। बट ट्रस्ट मी, द रियल गेम स्टार्ट्स व्हेन यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन फॉर दोस 10 सब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है। अभी जैसे मेरे बच्चों का एग्जाम है कुछ का, ठीक है, जो सीएफए का एग्जाम देंगे इस बार। एंड उन बच्चों का केवल एक ही परेशानी है कि सर हमें हमने सब करा है, सब कुछ पढ़ा है, दो दो बार क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, दो दो बार उन्होंने उनका सीएफए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में सॉल्व करा है, सब कुछ करा है। बट द ओनली चैलेंज विच दे फेसिंग राइट नाउ इज कि सर 10 सब्जेक्ट है, टॉपिक्स कॉन्सेप्ट ध्यान रखते रखते और रिवाइज करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बट तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी तुम पढ़ना चालू करो, जब से पढ़ना चालू कर रहे हो, रिवीजन रखो जितना हो सके, उतनी बार रिवाइज करो। और सिलेबस 1% पाइल ऑन मत होने देना। ये इतना बड़ा संसार है ना सीएफए का, इतने सब्जेक्ट्स, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि अगर आप रिवीजन नहीं रखोगे तो आप अपना पीछे तो जाओगे बिना कुछ करे। आपको लगा यार ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा था, एकदम से क्या हो गया आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड यू नो मोस्ट ऑफ थिंग्स विल बी आउट ऑफ योर हैंड। और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने सारे पेपर एक एक बार में निकाले। आई थिंक मेरे पेपर केवल एक ही रीजन से निकलते थे, दैट आई यूज्ड टू रिवाइज अ लॉट। मैं हर टॉपिक खतरनाक तरीके से रिवाइज करता था। वरना बच्चों का कोई ना कोई लेवल अटकता है, वो अटकता केवल एक ही रीजन से है कि रिवीजन की कमी होती है। ठीक है। तो ये गलती प्लीज मत करना। आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन, यू विल सफर अदरवाइज। ठीक है। और देखो सीएफए का एग्जाम ऐसे बहुत एक्सपेंसिव होता है, 1 1.25 लाख एक पेपर में लग जाता है। तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है ना बहुत कम होता है। तो उस चीज को ध्यान में लेके चलो।
एंड CFA इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप चल रही है अभी, स्कॉलरशिप विंडो ओपन है जिनको मई के लिए अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो प्लीज अपना स्कॉलरशिप विंडो भी फिल करने लग जाओ अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, एंड एप्लीकेशन रेडी कर लो। इफ यू फेस एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एनी टाइम, ठीक है? चलो उसमें बाद में आऊंगा मैं एक बार। नाउ लेट्स कंटिन्यू टॉपिक फर्दर। चलो, so this was with respect to geometric mean. Now there's something called as harmonic mean. हार्मोनिक मीन का देखो पर्पस क्या होता है। हार्मोनिक मीन आर बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज परचेज्ड ओवर टाइम। मतलब कि लेट से मैंने कोई स्टॉक था, मैंने कोई स्टॉक लिया 100 रुपए पे लिया, मैंने वो स्टॉक जब 91 पे आया तब भी बाय करा, जब 85 पे आया मैं तब भी बाय करा। मैंने हर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे जब जब वो स्टॉक प्राइस आई, मैंने उन सब लेवल पर स्टॉक को परचेज करा। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस इन सच केस। अब कोई बोल सकता है सर आप तो एक काम कर सकते हो ना कि 100 प्लस 91 प्लस 85 डिवाइड बाय 3 कर दो, आपकी एवरेज आ जाएगी। बट अगेन ये मेथड गलत है। अब ये मेथड गलत क्यों है उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि देखो जब हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं ना 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3, जब भी हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, हम हर वैल्यू को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब कि अगर लेट्स से 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3 कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3। इसका मतलब यही होता है। यानी इसको और अगर फर्दर डिवाइड करूँ तो 1 × 1/3 प्लस 1/3 × 2 प्लस 1/3 × 3। इसको और फर्दर ब्रेक करूँ तो इसका मतलब 0.33 × 1 प्लस 0.33 × 2 प्लस 0.33 × 3। यानी मैंने तीनों वैल्यूज को क्या दिया है, इक्वल वेट दिया है, इक्वल वेट दिया है। तो जब हमें नॉर्मल एवरेज निकालते हैं ना, वो नॉर्मल एवरेज हम जब भी निकाल सकते हैं जब तीनों वैल्यूज का इक्वल वेट, जब तीनों वैल्यूज का इक्वल वेट हो। बट जब हम ऐसी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं जहां पे हम जैसे रिटर्न निकाल रहे हैं, एवरेज एनुअल रिटर्न निकाल रहे हैं या एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं, उस केस में चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज होती है। वो क्या होता है कि यहाँ पे वेट्स इक्वल नहीं होते, वेट्स चेंज हो जाता है, वेट्स चेंज हो जाता है। कैसे कि लेट्स से मैंने डिसाइड करा कि मैं किसी स्टॉक में हर बार 1000 रुपए इन्वेस्ट करूँ। आई विल इन्वेस्ट 1000 रुपीज इन स्टॉक एट एनी प्राइस। ठीक है, मतलब कि अगर स्टॉक पे 100 रुपए थी तभी मैं स्टॉक में 1000 रुपए डाल रहा हूँ, तो मेरे पास कितने शेयर आ रहे हैं, 10। जब 90 रुपीज आई तब मेरे पास कितने शेयर आ रहे हैं, 11.11। जब उसकी प्राइस 80 हो गई तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, 12.5। यानी हर बार वेट अलग अलग आ रहा है क्या, नंबर ऑफ स्टॉक्स अलग अलग आ रहा है एवरीवन। तो आइडियली उस केस में ये जो एवरेज 1/3 वाला जो हम लॉजिक यूज करते थे वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा हार्मोनिक मीन। वी वुड नीड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन निकालते कैसे हैं, हार्मोनिक मीन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो आपको यूज करना होता है, विच इज n डिवाइड बाय समेशन 1/x। n डिवाइड बाय समेशन 1/x। n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इस केस में, 3। डिवाइड बाय 1/x मतलब 1/100 प्लस 1/90 प्लस 1/8। इसको अगर आप जब सॉल्व करोगे दैट शैल गिव यू द एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर्स दैट यू हैव परचेज्ड। ठीक है, एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर्स व्हिच यू हैव परचेज्ड। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दिस लॉजिक इज क्लियर। Yes, मधुर, सिमरन, आर्यमन, विवेक, sir. Yeah. सिमरन समझ में आ रहा है या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कुछ? नहीं सर आ गया। आ गया बेटा, नोट कर फॉर्मूला वगैरह, नोट कर एक बार पहले। And then Okay. I'm giving you one question. Please try to solve this. ये क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
RMN 11.20, ओके चलो सॉल्व करता। सिंपली वी आर गिवन 3 प्राइसेस, ठीक है। We are being given 3 prices, which is 8, 9 and 10. These are prices at which we have purchased the share. So as per the formula में क्या करना होगा, n which is 3 divided by 1 by x which is 1 by 8 plus 1 by 9 plus 1 by 10, यही करना है हमें, ठीक है। बट क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आएगा ना उसमें। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स क्यों लेना है? पता है ना कि x is equal to quantity of shares, it's not the price of the share, प्राइस, the price of the share. यस। ये जो अपन ने लिया यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में सॉल्व करा था, वहां पे मैंने क्या करा था? ओके ओके, मैंने क्वांटिटी ले ली तो एवरेज क्वांटिटी आ गई। हाँ ठीक है, तो ये प्राइस है 100, 90, 80, तो उस अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करा है उसमें, ठीक है। 1 by 100 plus 1 by 90 plus 1 by 80, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, गोल न्यू कैलकुलेटर। 1 by 8 is 0.1.25 plus 0.11111 plus 0.1, ठीक है। तो न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में तो 1 by x हो जाएगा into 3, 8.9256 shall be our answer. सर 3/12 नहीं होगा, 3 मंथ्स दिए हुए, क्या? 3 मंथ्स दिए हुए है ना क्वेश्चन में। नहीं नहीं भाई, n का मतलब होता है कितनी प्राइसेस हैं। 3 प्राइसेस थी, 3 प्राइसेस, करेक्ट सिमरन, यू आर राइट, 8.92, 3 प्राइसेस थी। तो क्या हुआ, 8, 9, 10, 3 प्राइसेस, तो n3 होगा, 3/12 क्यों होगा? n का मतलब होता है नंबर ऑफ प्राइसेस, सिंपली, ठीक है। चलो, अच्छा, एक रिलेशनशिप है बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता है जो नॉर्मल वाला हम जो मीन निकालते हैं ना, उसको स्टैटिस्टिकली हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। देयर इज अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री, वो क्या है वो ध्यान रखना हमेशा। पहली रिलेशनशिप ये है दैट am अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, ठीक है। अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, उससे बड़ा होता है हार्मोनिक, ठीक है। दूसरी रिलेशनशिप जो है ना वो है कि अरिथमेटिक मीन इनटू द हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों रिलेशन प्लीज अपने नोट्स में कहीं पे लिख के रख लो, एग्जाम में कई बार एक कहीं ना कहीं से इधर उधर से घूम के आ जाता, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है। लेट्स से यू हैव 100 प्रॉपर्टीज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, और सबकी रेट है लेट्स से 1 लाख रुपीज। सब प्रॉपर्टीज है, 99 प्रॉपर्टीज का रेट है 1 लाख रुपीज, और एक प्रॉपर्टी है उसका रेट है 1 करोड़। एक प्रॉपर्टी है उसका उसका प्राइस है 1 करोड़, बाकी जो 99 प्रॉपर्टीज है उनका प्राइस है 1 लाख रुपीज। एक कोई प्रॉपर्टी है उसका प्राइस है 1 करोड़, ठीक है। दिस इज अ अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन और एन आउटलायर, और एन आउटलायर। इसे हम बोल सकते हैं कि ये डेटा सेट में एक आउटलायर है, ठीक है, विच इज नॉट representative of the entire data, which is not representative of the entire data। ये एक हमारा
आउटलायर है, ठीक है, ये हमारा एक आउटलायर, ठीक है। इस आउटलायर की वजह से क्या होगा, जो मेरा मीन आएगा या मेरे जो बाकी अदर स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन आएगी वो इनकरेक्ट आ सकती है, वो इनकरेक्ट आ सकती है। तो हाउ डू आई डील विद दिस पर्टिकुलर आउटलायर, इस आउटलायर के साथ हाउ शुड आई डील विद दिस, ठीक है। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव इन हैंड, दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव इन हैंड, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के दो तरीके हैं, इस प्रॉब्लम से डील करने के दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रिम्ड मीन, एक को हम बोलते हैं ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन का मतलब ये होता है ट्रिम कर देना, काट देना, ठीक है। कि जो आउटलायर्स है, मान लो कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें यहाँ पे और यहाँ पे कुछ आउटलायर्स आ रहे हैं, तो उस पार्ट को रिमूव कर देना, हटा देना। तो लेट्स से आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें से दो आउटलायर्स आ रहे थे, एक्सट्रीम एंड्स पे दो आउटलायर्स थे, लोअर साइड एंड हाईएस्ट साइड दो आउटलायर्स थे, तो आपने दोनों को हटा दिया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 98 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बिकॉज आपने जो एक्सट्रीम आउटलायर्स थे उनको हटा दिया। दैट इज नोन एज ट्रिम्ड मीन। नाउ वट एवर डेटा सेट यू हैव इज द रेलेवेंट डेटा सेट फॉर योर रीडिंग और अंडरस्टैंड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रिम्ड मीन। दूसरा तरीका होता है विंसराइज्ड मीन, दूसरा तरीका होता है विंसराइज्ड मीन, विंसराइज्ड मीन, ठीक है। विंसर, मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ उसको, विंसराइज्ड, विंसराइज्ड मीन। विंसराइज्ड मीन क्या बोलता है कि यार अपने डेटा सेट को आप ट्रिम मत करो, आप काटो मत, ठीक है। विंसराइज्ड मीन ये बोलता है कि दैट इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स, what you should ideally do is replace those outliers with a value which is somewhere more representative of the entire data, ठीक है। कि मान लो कि जो आउटलायर्स है उनकी जगह मैं ऐसी कोई वैल्यू रख दूं जो मोटा मोटी representative हो of the entire data set, of the entire data set, that is विंसराइज्ड मीन, इसे हम बोलते हैं विंसराइज्ड मीन, ठीक है। तो उस केस में विंसराइज्ड मीन में क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो सेम रहता है, वो 100 ही रहता है। बस आप क्या करते हो, आप आउटलायर्स को किसी और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर देते हो, दैट इज विंसराइज्ड। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन। So can you explain it again? विंसराइज्ड मीन या ट्रिम्ड मीन? Both. My बोथ। yes, because I actually before this class I tried to learn them, but I did not get them. I'll explain them in a short form. Basically, trimmed mean का मतलब क्या होता है? You understood the concept of outliers, Yes, sir. Extreme values. Okay. extreme values, basically, or anomaly in the data set. ठीक है? Yes. Now, to deal with anomaly, there are two methods. ठीक है? पहला होता है trimmed mean. Trimmed mean ये बोलता है कि यार let's say मेरे पास अगर 100 observations हैं और उसमें let's say कुछ extreme outliers हैं on both the spectrum, on the lowest and the highest side, then I shall cut off those values. Trim कर दूंगा मैं उनको, ठीक है, उनको मैं हटा दूंगा उन values को, and then the data set which I'm left with is more representative of the entire population, ठीक है, that is the trimmed mean, ठीक है। The second way to deal with outliers is that instead of cutting off the values, instead of removing the values, है ना, आप क्या करो, आप उन आउटलायर्स को रिप्लेस कर दो कुछ ऐसी वैल्यू से विच आर मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, ठीक है, जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, जो मेरे डेटा के बिहेवियर को बताती हो, मैं उन वैल्यू से आउटलायर्स को रिप्लेस कर दूं, तो दैट इज विंसराइज्ड मीन, ठीक है। अंतर दोनों में इतना ही होता है सबसे बड़ा कि ट्रिम्ड मीन में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हो जाते हैं बिकॉज मैं ऑब्जर्वेशन हटा देता हूँ, काट देता हूँ। विंसराइज्ड में क्या होता है, विंसराइज्ड में आप एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हटाते नहीं हो, उनको आप रिप्लेस कर दो, क्लियर? Aryaman, is it clear now? Yes, sir. ठीक, चलो, now come to model quiz 1.1. There are four very easy questions given in front of you, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, please solve them quickly, then we shall move to the next topic.
बहुत आसान क्वेश्चन है, चार ही, प्लीज फटाफट खत्म करो इनको। Where is it? 1.1, पेज नंबर Na Google Drive. the PDF of the book. Which book? If you don't have that right now, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, that's okay. बाकी book was uploaded on the drive itself, ठीक है, but ठीक है, if you don't have that, that's fine. So, yeah. बाकी you can access the book for quants and eco on the drive itself. IG done. Okay. सिमरन शाबाश। फोर्थ वाले का आंसर बताओ भाई।
फोर्थ का सी, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। एवरीवन डन नाउ? ठीक है, एवरीवन डन? सर एक बार रियल रिस्क फ्री रेट और रिस्क फ्री रेट में डिफरेंस बता दो। जो रियल रिस्क फ्री रेट होती है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम इज दैट इट इज द रेट ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन। ठीक है भाई, हमने जब डिस्कस करा था रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट, तब मैंने एक बहुत सिंपल चीज बोली थी। मैंने ये बोला था कि भाई रियल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, तो बस पाँच, the concept of real return was that the return which are made over and above the inflation. भाई इन्फ्लेशन के ओवर एंड अबव जो मैं रिटर्न बना रहा हूँ, दैट इज माय रियल रिटर्न। अब जो रियल रिटर्न है यही तो मेरे को एक्चुअल फ्यूचर कंजम्पशन में हेल्प करेगा। लॉजिकली सोच कि आज मान लो मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और मेरी इनकम बढ़ी 110 हो गई, बट इन्फ्लेशन में 10% हो गया, तो जितनी मेरी इनकम बढ़ी उतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो मेरे कंजम्पशन में कोई चेंज आया क्या? No, नहीं आया ना। बट if let's say my income increased by 15% and the inflation increased by 10%, I earn 5% more extra. That shall propel the change in my future consumption, and that is what your interest rate is, or that is your real rate is preference for future consumption. ठीक है, तो हमेशा जब भी yes. इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट समझना है, हमेशा वो कंजम्पशन वाला टॉपिक आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो, फोर्थ क्वेश्चन था मेरे को जिसका मेन था, द फोर्थ क्वेश्चन का आंसर शैल बी ऑप्शन सी विच इज ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज हम स्टॉक रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, फंड रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, दे कैन ओनली बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? ठीक है, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, इंटरेस्ट रेट फ्रॉम व्हिच इन्फ्लेशन प्रीमियम हैज बीन सब्ट्रैक्टेड, ऑब्वियसली रियल रिटर्न होता है। ठीक है, चलो भाई, now we shall move to next LOS. Before moving on to next LOS, right now it's 12:08. Let's take a 10-15 minute break. ठीक है, यहाँ से 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, and now let's connect at around 12:20. ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलो, हैव समथिंग वाटर और समथिंग, मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पीता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। Guys, the audio video is fine. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, cool. So now we move to the further LOS of the chapter. ठीक है, and अब जिस LOS में हम जाएंगे ना, that is perhaps one of the most important part of the time value of money concept, which is calculation of fund return. ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था ना, अभी तक हमने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, जहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन देखा, हमने हार्मोनिक मीन देखा। अब हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली फंड लेवल पे हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, what are the methods which are being applied to calculate the fund return। इसके लिए हम दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, और दो मेथड अवेलेबल है हमारे पास। एक को बोलते हैं हम MWRR, और एक को हम बोलते हैं TWRR। वन इज कॉल्ड एज MWRR, वन इज कॉल्ड एज TWRR। MWRR का मतलब होता है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। TWR का मतलब होता है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। एक का मतलब होता है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरे का मतलब होता है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न पे आने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न।
उसका रीजन है बिकॉज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न हमने अभी अभी करा है, तो आप थोड़ा सा ना उससे रिलेट कर पाओ, but it shall be less difficult for you to understand because we have done some part of it just now. ठीक है? कैसे? जो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, दिस इज जस्ट लाइक ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये बिल्कुल ज्योमेट्रिक मीन जैसा ही होता है। ठीक है? क्या होता है इसमें, कैसे चीजें होती है, वो समझते हैं। ठीक है? तो जो आपका टॉपिक है वैसे लिख लेना, एंड इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न लिख लेना ज्योमेट्रिक मीन, और मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न लिख लेना IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं समझता IRR क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा, बट जस्ट वट एवर द नोट्स दैट यू हैव, कुछ भी आप जिसमें लिखते हो उसमें इस तरीके से एक बार नोट कर लो, फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? एंड वंस यू हैव नोटेड प्लीज लेट मी नो, जस्ट फॉर योर नोट्स पर्सपेक्टिव ऐसे एक बार लिख लो एंड देन आई शैल मूव फॉरवर्ड। ठीक है? ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ये IRR होता है। ठीक है? डन? Yes. चल, मूव फॉरवर्ड। अब आगे समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब समझ लीजिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ TWRR से, which is time weighted rate of return. Time weighted rate of return basically is just like geometric mean, जहां पे हम क्या करते हैं, हर पीरियड का रिटर्न निकालते हैं। हर पीरियड का रिटर्न निकालने के बाद उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक एवरेज रिटर्न हमने कितना निकाला। मतलब ये चीज समझाने के लिए एक क्वेश्चन को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, पहले आपको कुछ नहीं करना, डोंट गो इनटू सॉल्विंग और एनीथिंग, जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, और फिर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है? एक बार केवल क्वेश्चन तसल्ली से आप रीड करो। क्वेश्चन है, इन्वेस्टर परचेज स्टॉक एट 100 रुपीज एट टाइम पीरियड 0, एंड ऑफ ईयर 1 इन्वेस्टर बाइज अनदर शेयर फॉर 120 रुपीज। यानी जो 100 रुपए का शेयर था उसका दाम कितना हो गया, 120 हो गया। द प्राइस इज इंक्रीज्ड। ठीक है? एट द एंड ऑफ ईयर 2, यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर, इन्वेस्टर सेल्स बोथ द शेयर्स एट 130। एट द एंड ऑफ बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, the stock paid a dividend of two rupees per share. ठीक है? What is the annual time weighted rate of return for this investment? This is what we have been asked to calculate. ये टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आया है आपको कैलकुलेट। ठीक है? क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आया? क्वेश्चन को एक नंबर लाइन से बनाते हैं ताकि आपको समझ में। ठीक है? टाइम पीरियड 0, टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2। ठीक है? अब टाइम पीरियड सबसे पहले 0 की बात करते हैं। 0 पे 100 रुपीज का शेयर था, और मैंने यहाँ पे एक शेयर परचेज करा। ठीक? अब जो एक शेयर मैंने परचेज करा, इसका एक साल बाद भाव कितना हो गया, 120 हो गया। 120 हो गया। और यहां तक मुझे डिविडेंड कितना मिला, हाउ मच डिविडेंड आई हैव अर्न, हाउ मच डिविडेंड आई हैव अर्न। $2. भाई एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, 2 रुपए मिल रहा है, तो 2 रुपए का डिविडेंड मुझे मिला। ठीक है? 2 रुपए का डिविडेंड मुझे। सिमिलरली इस टाइम पे मैंने एक और शेयर परचेज करा 120 रुपए का। ठीक है? और उसको बाद में 130 पे सेल कर, तो एक साल में मैंने को मिला कितना, 260 प्लस 2 शेयर का डिविडेंड, यानी 4 रुपए। ठीक है? यही इस क्वेश्चन में हुआ है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं सबसे पहले हर टाइम पीरियड का, मतलब यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, मैं क्या करता हूँ, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालता हूँ। ठीक है? यहाँ पे 2 शेयर हो गए थे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालता हूँ। और सर होल्डिंग पीरियड, हाँ कैसे हुआ? बोलो। 260 कैसे हुआ? 2 शेयर हो गए थे ना, ओके 2 शेयर सेल करे मैंने 130 में। ओके
260 मिल रहा है मुझे। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ HPR1, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन टाइम पीरियड 1। वो कैसे निकालूंगा? 100 रुपए का शेयर था, एक ही शेयर पूरे साल था। 100 रुपए का शेयर एक साल तो कितने का हो गया? 120 का। 100 रुपये शेयर कितना, कितने का हो गया? 120 का हो गया। और उस शेयर पे मैंने 2 रुपए और अर्न करे। ठीक है, तो मेरे को कितना मिला टोटल? 120 माइनस 100 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। फर्स्ट पीरियड का होल्डिंग पे रिटर्न 22% है, समझ में आया सबको? 120 रुपए शेयर का भाव हो गया, 100 रुपए का शेयर था, तो टोटल मैंने कितना कमाया? 20 रुपए तो यहाँ से कमाया, ये 20 रुपए यहाँ पे कमाए, प्लस 2 रुपए का डिविडेंड, तो टोटल कितना कमाया? 22 रुपए कमाया। 100 रुपए शेयर का भाव था, इंटू 100 कितना हो गया? 22%। दैट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये क्लियर है क्या? एबल टू मेक सेंस? यहां तक सेंस बन जाएगा सबको? मधुर, आर्यमन, विवेक, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब निकालते हैं सेकंड पीरियड का होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सेकंड पीरियड में मेरे पास कितने शेयर है? एक शेयर है, दो शेयर है एट द स्टार्ट? एक एक है, दो है? वापस क्वेश्चन रीड करो। दो 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 है। दोनों शेयर का भाव कितना है? प्राइस कितना है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर? 130 ओ 120 कितना? 120 120। ठीक है, तो यानी टोटल भाव कितना है शेयर्स का? 240 रुपए। स्टार्टिंग भाव कितना हुआ शेयर्स का? 240 रुपए। और एंड में वैल्यू कितनी हुई शेयर्स की? 60 130, यानी 130 इंटू 260 होगी। हम्म, तो HPR2 कितना हुआ? 260 माइनस 240, 260 माइनस 240 हम्म, प्लस 4 रुपए। दोनों शेयर पे 2-2 रुपए डिविडेंड कमाया, अपॉन 240 इंटू 100। बताना कितना आया? 10% कितना? 10%। 10%। भाई सिंपल कर रहा हूँ मैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल रहा हूँ। होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला, एकदम सिंपल लॉजिक, कुछ ज्यादा मत सोचना। स्टार्टिंग ईयर वैल्यू कितनी थी, एंड ऑफ ईयर वैल्यू कितनी है, डिविडेंड कितना कमाया, डिवाइड बाय द स्टार्टिंग ईयर वैल्यू इनटू 100। बस ये करना है। ठीक है, सबसे पहले एंड ऑफ ईयर वैल्यू माइनस स्टार्टिंग ईयर वैल्यू प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय द बेस इनटू 100। 22% और 10%। ठीक है, अब देखो वही सिंपल चीज जो हमने ज्योमेट्रिक मीन में करी थी। 100 रुपए का शेयर है, पहले साल कितना कमाया उस पे? 22%। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई फर्स्ट के एंड में? 1+0.22 यानी 122 शेयर। और फिर 122 पे 1.1 कितना आया है बताना? 134.2 134.20। 2 तो 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए हमारी इनिशियल वैल्यू, ये हो गया PV, 134.20 FV, N हो गया 2, PMT हो गया 0, CPT आई बाय। सॉल्व करना भाई, वही सेम ज्योमेट्रिक मीन के लॉजिक लगाना है इसमें।
15.84. 15.84. Everyone getting this answer? सर बट अपन ये एक पर्टिकुलर एक ही शेयर के लिए कर रहे हैं ना ये हाँ, ये अपन एक शेयर के लिए नहीं कर रहा यार, ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ मैं। एक इन्वेस्टमेंट बट अपन ने जैसे सेकंड ईयर में जो इन्वेस्टमेंट करी एक और शेयर की तो उसका ये रिटर्न थोड़ी कैलकुलेट कर एग्जैक्टली वही भाई, हो गई टोटल मैंने कितना कमाया है ना, इन टर्म्स जी ऑफ टाइम, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज द 15, दैट इज 15.84, सिंपल। ठीक है। ओके इन टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हाँ, इन टोटल यू हैव अर्न 15.84 एज योर रिटर्न। Here, make sense? हम्म Any doubt, anyone? भाई, तुम इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हें स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको ऐसे समझो कि यार एक फंड के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। आज मान लो तुम एक फंड मैनेजर हो, आप एक फंड मैनेजर हो, आप ना फंड का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि फंड में क्या होगा, बार बार पैसा आएगा भी जाएगा भी। फंड में यही होता है ना यार, कि फंड में राइट मैं, हर इन्वेस्टर अपना पैसा बीच बीच में डाल भी रहा होता है, तो फंड की वैल्यू वैसे भी ग्रो कर रही होती है, और फंड जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप, उससे भी वैल्यू ग्रो कर रही होती है। तो हाउ विल यू जज और हाउ विल यू कैलकुलेट द फंड रिटर्न, या हाउ विल यू कैलकुलेट द फंड रिटर्न? उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न या मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। जो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, सॉरी, जो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो हम ऐसे निकालते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग ईयर वैल्यू कितनी थी, एंड ऑफ ईयर वैल्यू कितनी थी, और फंड ने कोई डिविडेंड दिया है क्या। उससे हमें एचपीआर मिल जाता है हर साल का। वी यूज दैट एचपीआर टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज आर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? ओके फॉलो कर पा रहे हो? फ्लो पूरा समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड CAGR एज वेल राइट यस, दिस इज सीएजीआर। इनफैक्ट असेंशली हम यही तो बोलते हैं कि भाई कोई भी फंड है, आप उसको सीएजीआर ही निकालो, है ना? हाँ है ना? यही बोलते हैं हम हमेशा। जी और जी उसी को थोड़ा सा और वोकैब के फॉर्म में दे दिया तो बोलते हैं भाई टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इसको नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट दैट वी हैव इज द मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। अब जो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट या लॉजिक जो अप्लाई होता है वो आईआरआर का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, अभी मैं इस पे ज्यादा डेप्थ में और लेके नहीं जाऊंगा इसको, बिकॉज ये थोड़ा सा फिर, क्योंकि आगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में वापस आएगा एक बार। बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है दैट व्हाट इज दैट रेट विच शैल मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बोथ इक्वल। लेट्स से जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जो मुझे मिल रहा है, उन दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बराबर आ जाए, वो कौन सी इंटरेस्ट रेट होती है, उसे हम आईआरआर बोलते हैं। कि भाई दिस इज द लीस्ट पॉसिबल रिटर्न जो आप अर्न कर सकते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट में, कि मेरी जो पीवी ऑफ इनफ्लो, इफ इट इज इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो, वो जिस रेट पे दोनों इक्वल हो गए, वो होता है मेरा आई आर, वो होता है मेरा आई आर। क्लियर है? दैट इज माई आई आर आर ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग। ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझ में आई, व्हाट इज आईआरआर, आईआरआर होता क्या है, पहले ये चीज क्लियर। IRR is basically the rate which sets your PV of cash inflows equal to the PV of cash outflows। ठीक है, और यही IRR को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टू कैलकुलेट आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले ये चीज क्लियर। ठीक है, ठीक है। अगर हम आईआरआर जब से कम रेट आया तो लॉस होगा ना? IRR से कम रेट आया तो लॉस होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज यार ये तो बेयर मिनिमम है, इतना इस पे तो आपका दोनों इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज मैच कर रहे हैं, यस सर। है ना? और उससे भी अगर कम आ रहे हो तो फिर नुकसान में आप मेरे को, है ना? चल, नाउ अब इसको समझते हैं हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी दिस पर्टिकुलर
rate of return or this particular return gets impacted by the flow of money in circulation, यानी कैसे पैसा आ रहा है ना, उससे बड़ा इम्पैक्ट होता है। समझते कैसे? अभी जो क्वेश्चन था ना आपका, एक बार उसी को एक बार वापस रीड कर लो ताकि आपको पता रहे कि कब कब पैसा आया है, कैसे कैसे आया है। ठीक है, एक बार उसी को प्लीज रीड कर लो एक बार। रीड कर लिया एक बार एवरीवन? ठीक है, अब हमें उसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट ईयर में मैंने 100 रुपए लगाए। ठीक है, 100 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, सेकेंड ईयर मतलब सॉरी इनिशियली नॉट फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मेरे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। फर्स्ट ईयर के एंड तक मैंने 120 रुपए और लगाए और 2 रुपए का डिविडेंड कमाया, तो मोटा मोटा मेरी जेब से 118 रुपए लगे। यही हुआ। और थर्ड और सेकेंड ईयर तक क्या हुआ, मेरे को 260 रुपए मिले क्योंकि मैंने दोनों शेयर बेचे, प्लस 4 रुपए का डिविडेंड मिला, तो 264 रुपीज मुझे पहले 100 रुपए लगे, फिर 118 रुपए लगे, और इसके बाद मुझे कितना मिला, 264 रुपीज मिले। नाउ आई फर्स्ट वांट टू कैलकुलेट माय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना। तो मैं तो जाऊंगा कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर जाके कैंसिल करा, ये करा, सेकेंडरी शीट मारा एक बार। कैश फ्लो में गया, सबसे पहले में 100 रुपए लग रहे हैं, तो 100 माइनस एंटर, एरो डाउन। फिर मेरे 118 रुपए लग रहे हैं, तो 118 माइनस एंटर, एरो डाउन। फिर मेरे को मिल कितना रहा है, 264, तो 264 एंटर, एरो। यहां तक हमने सेट कर लिया कैश फ्लो में। देन सीपीटी आईआरआर। ठीक है, देन सीपीटी आईआरआर 13.86. This is the IRR which I am making by this investment, or this is my money weighted rate of return. Money weighted rate of return. This is the interest rate which I'll make the returns of my inflows and my outflows equal. ठीक है, या internal rate of return मेरा कितना आ रहा है इस प्रोजेक्ट में, 13.86. 13.86. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? The maximum which I am making is 13.86 in this given investment. Maximum return मिनिमम हुआ ना, क्या? मिनिमम हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तू इस चीज को समझ। इंटरेस्ट रेट और प्रेजेंट वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव सर होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पीवी फॉल करेगा, यस राइट? आज मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से कर रहा हूँ कि मेरे को जो एनपीवी मिले वो पॉजिटिव मिले। यस सर। अगर इंटरेस्ट रेट 13.86, मैं इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो मेरा जो एनपीवी है वो 0 होगा या नेगेटिव हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा यस भाई। 13.86 में तो 0 हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट वहां से इंक्रीज करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही फीजिबल नहीं है ना एक तरीके से। आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट फीजिबल कब होता है, जब इससे कम है। इससे नीचे वाले इंटरेस्ट रेट पे तो एनपीवी पॉजिटिव चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। है ना? तो भाई मैक्सिमम तो कितना कमा रहा है, 13.86 कमा रहा है। बेस्ट से बेस्ट क्या कमा रहे हो, 13.86 वाया दिस इन्वेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से मतलब बढ़ाएगा तो ये NPV। हाँ, ये वो रिटर्न बताता है कि जिसपे हमारी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया तो एक तरीके से, है ना? So the best that you're earning is 13.86 in this investment. Now we need to see one thing which is MWRR कितना था, 13.86. ठीक है,
और आपका TWR बताना कितना आ रहा था? 15.84. 15. HPR1 कितना आ रहा है मेरा? 22 कुछ था शायद। Yes. 22%, और HPR2 कितना आ रहा था? 10%, 10%. है ना? अब देखो, जो मैक्सिमम कैश फ्लो मेरे को मिल रहा है वो कौन से टाइम पीरियड में मिल रहा है? टाइम पीरियड 1 है, टाइम पीरियड 2? टू पे मिल रहा. जो मैक्सिमम पैसा मिल रहा है वो कब मिल रहा है मुझे? टाइम पीरियड 2 पे मिल रहा Yes, Yes, yes. sir. है ना? टाइम पीरियड 2 पे मुझे कितना मिल रहा है? 264 रुपए। सबसे ज्यादा पैसे का फ्लो वहां आ रहा है, टाइम पीरियड 2 पे आ रहा है। तो जो मेरा मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न आया ना, वो भी इंक्लाइन कहाँ पे हुआ? HPR2 की तरफ हुआ। HPR2 की तरफ हुआ। Okay. समझो, 13.86, 86 या 84 जो भी आया, वो क्यों आया? कि मेरा जो मैक्सिमम कैश फ्लो था वो कब आया था? टाइम पीरियड 2 पे। और टाइम पीरियड 2 पे जो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10% ही आ रहा है। तो मेरा मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑब्वियसली कम आ रहा है। समझ रहे हो? बिकॉज आई एम रिसीविंग द मैक्सिमम कैश फ्लोज इन टाइम पीरियड 2, hence my returns are also projected towards the second time. Sir, as you mentioned that this is the best uh, return we can get, this 13.86. Hmm. At the same time, what you're saying ki IRR is the minimum return that we can get from an investment. अरे मिनिमम उस सेंस में कि मिनिमम इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस करेंगे ना, जी. कॉर्पोरेट फाइनेंस में करेंगे तो मैं इसको कॉस्ट ऑफ डेट पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा। अभी चलो उस वाली चीज को आप इग्नोर कर दो, जो मिनिमम वाली पॉइंट है उसको एक बार इग्नोर कर दो। यू जस्ट थिंक ऑफ इट एज द मैक्सिमम रिटर्न दैट यू गेटिंग इन अ प्रोजेक्ट। जब मैं कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में कराऊंगा तब मैं इसको कॉस्ट ऑफ डेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे वो पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, अभी वो क्या दोनों पॉइंट मर्ज इसलिए हो रहे हैं बिकॉज विवेक हैज डन कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो वो दोनों पॉइंट मर्ज हो रहे थे इसलिए, तो वो अभी पॉइंट इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। अभी जस्ट थिंक ऑफ इट एज the maximum best possible return you are making in a given situation. ठीक है, Okay. आई होप इट इज क्लियर। Yeah. ठीक है, मतलब डेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि अगर भाई तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेट 13.86 से कम है तो तुम्हारे प्रोजेक्ट वायबल Hmm. है ना? मतलब इफ यू आर एबल टू रिलेट सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन एनबीएफसी, Yeah. तो इसको अगर मैं थोड़ा टच अपॉन कर लूंगा यार, इफ माय आईआर इज 13.86 एंड माय कॉस्ट ऑफ डेट कम्स आउट टू बी लेट्स से 12%, तो मुझे पता है एनपीवी अपना भी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? द प्रोजेक्ट इज इटसेल्फ अफोर्डेबल। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक टॉपिक आता है इसलिए वहां पे हम ये इसको लेके जाते हैं, बट मैं वो कोशिश करता है टू अवॉइड, बट वो फिर क्वेश्चंस में आया तो आई आल्सो हैड टू आंसर समवेयर। ठीक है, जी. बट राइट नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न व्हिच यू आर मेकिंग। Okay. हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ जी यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई जो HPR2 था वो 10% था, मैक्सिमम कैश फ्लोज आपके सेकंड टाइम पीरियड पे आ रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका MWRR था वो इंक्लाइन हो गया HPR2 के रिटर्न की तरफ, which is 10%. But this same problem won't happen in the case of TWRR. TWRR में कोई बायसनेस नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं, और ये लाइन बार बार आएगी, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी, that TWRR is a better representation of returns or better method of calculating returns. Why? Because it doesn't get impacted by the amount and timing of cash flows. TWRR never gets impacted. उसको फर्क नहीं पड़ता कि कैश फ्लोज कब ज्यादा आ रहे हैं कब कम आ रहे हैं, वो तो अपना एवरेज रिटर्न एक नॉर्मल कैलकुलेशन के साथ चलेगा। बट MWRR क्या होता है, वो इम्पैक्ट हो जाता है बाय द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। दैट्स व्हाई fund returns are always preferably calculated by TWRR and not MWRR, because TWRR never gets impacted by the amount and timing of cash flows, while MWRR does, because of which MWRR यहाँ पे कम आया 13.84 या 86 या इस केस। बात समझ पा रहे हो एवरीवन? सर लेकिन हम इन्वेस्ट तो फंड में MWRR को देख के करेंगे ना. इन्वेस्ट तो फंड में
MWR पे देख के कर। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों भाई? अभी अभी जब हमने फंड का रिटर्न निकाला था, तो मैंने कैसे निकाला? ज्योमेट्रिक मीन से निकाला था, किसी आईआरआर से निकाला था? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से निकाला था। सर लेकिन उससे टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो पता लग रहा है ना कि कब इन्वेस्ट कर रहा है हमारा जो फंड मैनेजमेंट। बिल्कुल भी नहीं, ज्योमेट्रिक मीन में कहाँ पे टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो कहाँ नहीं पे है सर, उसमें? MWR आपने बोला ना अभी, हाँ टाइमिंग तो ऑफ कैश फ्लो से। बिल्कुल अमाउंट एंड टाइमिंग से इम्पैक्ट हो रहा है, बट वही तो नहीं होना चाहिए ना भाई। फंड में मुझे फर्क थोड़ी पड़ता है आज मान लो, अच्छा एक चीज बताओ, उसको ऐसे समझो, कोई फंड है, उसमें 100 रुपए तुमने इन्वेस्ट करे, साल के बाद उस तुम्हारे फंड पैसे की वैल्यू 105 ही हुई, इस बीच में फंड को 100 मिलियन और मिल गए, और फिर फंड ने 110 बनाया और इसमें 200 मिलियन मिल गए। यहाँ पे फंड का जो रिटर्न है और यहाँ पे जो फंड का रिटर्न है वो बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। क्यों? बिकॉज एक्स्ट्रा पैसा मिला है, पैसा मिला है तो वो उसकी कैलकुलेशन में अकाउंट फॉर हो जाएगा, और वो उसकी कैलकुलेशन अकाउंट फॉर होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा रिटर्न जो आएगा वो कभी करेक्ट नहीं आएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे तो पैसे आने और जाने से भी मेरे रिटर्न इम्पैक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली जब हम रिटर्न निकालते हैं, जब हमें आइडली किसी फंड का रिटर्न निकालना होता है, तो हमें फर्क पड़ना चाहिए कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। वो टाइम पीरियड के हिसाब से देख क्या? टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं ना यूजुअली एक एग्जैक्टली टाइम पीरियड के हिसाब से देखना चाहिए। बट यहाँ पे तो मुझे अमाउंट से फर्क पड़ने लग रहा है, और जब मेरे रिटर्न में अमाउंट से फर्क पड़ने लग रहा है तो ऑब्वियसली मेरे रिटर्न कैलकुलेशन गलत होगी। इसलिए MWR को हम कभी प्रेफर नहीं करते। ठीक है, आई होप द डाउट इज क्लियर विवेक। यस सर। फॉलो कर पा रहे हो ना? मतलब देखो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें इतना भी अंश भी हो ना डाउट का थोड़ा सा भी, तो प्लीज पूछ ले। सर अगर TWR बड़ा है MWR से तो ये इंटरप्रेट क्या कर रहा है? बेटा वो बड़ा नहीं है, वो चीज समझ भाई। TWR तो जो अपना कैलकुलेशन आएगी उसके हिसाब से आ रहा है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा कोई भी अमाउंट है टाइमिंग का। बट पॉइंट ये आता है कि जो MWR है वो इम्पैक्ट हो रहा है अमाउंट एंड टाइमिंग से। सर लेकिन इसका कम आ रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वो गलत टाइम पे पैसा डाल रहा है मार्केट में। भाई तेरे सामने अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन निकाली है, जहाँ पे जो मेजर पैसा आ रहा था 264 रुपीज कहाँ पे मिल रहा था? सेकंड टाइम पीरियड में मिल रहा था। यस सर। जब सेकंड टाइम पीरियड में मिल रहा था, सेकंड टाइम पीरियड में रिटर्न कितना आ रहा है? एच पर कितना आता है? 10%। यस सर। तो रिटर्न्स इंक्लाइन कहाँ पे होने लग गए? सेकंड टाइम पीरियड की तरफ। बट यस सर। देखा जाए लॉजिकली देखा जाए तो मैक्सिमम रिटर्न तो कब बना है? फर्स्ट टाइम पीरियड में बना है। यस सर। तो रिटर्न्स इंक्लाइन भी कहाँ पे होने चाहिए? फर्स्ट टाइम पीरियड की तरफ ही होने चाहिए था ना यस सर। भाई। अगर देखा जाए तो कुछ एक एवरेज ऐसे इस तरीके से आना चाहिए था कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा और इसका कंट्रीब्यूशन कम हो। यस बट सर। यहाँ पे क्या होने लग गया, तो कंट्रीब्यूशन सेकंड टाइम पीरियड का ज्यादा आने लग गया, विच लॉजिकली डजंट मेक सेंस, राइट? अगर मैं बोलूँ भाई तेरे फंड ने फर्स्ट ईयर 100% रिटर्न निकाला और सेकंड ईयर 5% रिटर्न निकाला, तो इवन दो सेकंड ईयर कम रिटर्न निकाला बट कहीं ना कहीं 100% का इम्पैक्ट तो लेगा ना। अगर यस मैं सर। बोलूँ तेरा एवरेज रिटर्न 75% आ रहा है, इट वुड मेक सेंस, बट मैं बोलूँ कि तेरा एवरेज रिटर्न आ रहा है 15%, वो लॉजिक बनाएगा क्या? नो सर। ऑब्वियसली, बिकॉज भाई मैक्सिमम पैसा सेकंड टाइम पीरियड में आ गया, तो आपके रिटर्न सेकंड टाइम पीरियड की तरफ इंक्लाइन हो गए, जो लॉजिक गलत है। यस। ठीक है, यस। ओके। नाउ कम टू मॉडल क्विज 1.2। देयर आर टू क्वेश्चंस गिवन, प्लीज एक बार इनको फटाफट सॉल्व करो। सर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में ज्यादा वेटेज किसको दी जाती है? यार वहां पे भी TWRR ही निकाला जाता है, कोई भी फंड रिटर्न होगा ना, लॉजिकली कब सोचना, कोई भी फंड रिटर्न होगा अगर वो जेन्युइनली वो सही फंड है तो आपको हमेशा ज्योमेट्रिक मीन या TWRR देगा, वो कभी आपको MWRR नहीं देगा कभी भी। ठीक है, इनफैक्ट जो MWRR होता है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये केवल प्रोजेक्ट्स में निकालते हैं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट में निकालना बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफी के बराबर होता है। आप XIRR निकाल सकते हो, ठीक है, XIRR निकाल सकते हो, बट आइडियली हमेशा आपको जो निकालना चाहिए वो TWRR ही निकालना चाहिए। ठीक है। यस सर।
So can you please share the screen? क्या कर रहे हो? Screen share. For the बुक भी डाउनलोड कर लो यार, है ना? जी जी जी. ठीक है. सर मेरा IRR नेगेटिव आ रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, बोलो. आयरन नेगेटिव आ रहा है. हाँ, पोस्ट वाले क्वेश्चन ऐसा कैलकुलेशन. वैल्यू से डालिए बाय और सेल की. बाय में नेगेटिव होगा, सेल में पॉजिटिव होगा. नहीं, वैसे डाला है मैंने. चलो फिर वो देख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन करो जब तक. हाँ, बताओ. अब जैसे है ना, इसका कोई भी क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल जैसे है ना, अम, हाँ है ना, रविंद्र शर्मा, या रविंद्र शर्मा के बीच में बंद हो गई थी, रविंद्र कुमार गोयल वाली है, ये से रेगुलरली चल रही है ना. तो इसमें मैंने क्या सेटिंग करी हुई है कि कैलकुलेशन डेट जैसे 29 फरवरी. एक से करना. हम्म. इसमें कैलकुलेशन डेट में चेंज करता है. मैंने यहाँ तो मेरे को फॉर्मूला
ट्रेड क्या 17 अगस्त ना 17 या 17 अगस्त नहीं, अपन करते हैं 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2024। ठीक हो गया। हम्म इसमें ही चेंज करो ना, इसको डेट को चेंज करो ना, 31 कर दो, तो ये जुलाई तक अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा ब्रोकरेज। ठीक है, बताते हो कुछ नहीं कर। हाँ, हाँ 31 जुलाई, हाँ हाँ। और इसकी जो, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या होगा, वो अपना सारी ब्रोकरेज कैलकुलेशन कर लेगा, फिर बाद में तो मैं बाकी सब कर लूंगा। और उसमें बस इतना कर लेना, बेसिकली क्या है, ये हर फोलियो वाइज बनानी होती है। मतलब जैसे मान ले कि भाई इसका कोई क्लाइंट है, रविंद्र कुमार गोयल है, उसके 3 फोलियो बने हुए हैं अगर। एवरीवन डन? Yes. ओके। यस। आर्यमन डन? Done, sir. ओके, ऑसम। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, ऐड बहुत आते हैं इसमें। ठीक है जी, so let's come to the first question. Investor buys a share for 100 rupees, sorry, 40 rupees at time period 0, another share at 50 at time period 1, sells both share at time period 2 for 60. The stock paid a dividend of 1 rupee per share at time period 1 and 2. The periodic, one second. Uh, the periodic money weighted rate of return is equal to what? ठीक है,
तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अब इसको सॉल्व कर। टी इक्वल टू 0 में 40 रुपए का शेयर है, एक शेयर परचेज करा। टी इक्वल टू 1 में शेयर के भाव कितना होगा, 60 रुपीज का, यहाँ पे भी एक शेयर परचेज करा। अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना। तो पहले सेकंड रीसेट, यस। कैश फ्लो में आते हैं। 0 टाइम पीरियड पे 40 रुपए लग रहे हैं मेरे, 40 माइनस इंटर एरो। सेकंड टाइम पीरियड पे कितने लग रहे हैं, 50 रुपीज लग रहे हैं, बट डिविडेंड कितना मिल रहा है, 1 rupee 49. है ना। तो -49, तो 49 माइनस एंटर एरो डाउन। टाइम पीरियड 2 पे क्या हो रहा है, मैं दोनों शेयर सेल कर रहा हूँ 60 रुपीज पे, तो 120 रुपीज तो वो मिले, प्लस 2 रुपए का डिविडेंड, यानी 122 रुपए मिले इस पे, तो 122 एंटर एरो डाउन। पीपीटी आईआरआर कंप्यूट 23.82 या 23.8 is my answer. Periodic money meter rate of return. क्लियर है। ओह ओके सर, मैंने गलती करी थी, मैंने एक ही शेयर की वो ले ली थी आउटफ्लो। एग्जैक्ट वो इसमें भी कह रहा हूँ, शेयर से ध्यान रखना कितने, एक शेयर है, दो शेयर है, शेयर। 122. सर HPR में भी एक शेयर और 2 शेयर का रखना है। शेयर में कैलकुलेशन बेस अमाउंट चेंज करना। सर एचपीआर में भी ऐसे करना, बट मैटर नहीं करता ना वो तो। ये देख कर सकता है, क्योंकि देख डिविडेंड कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी ना, एक डिविडेंड मिल रहा है, दो डिविडेंड मिल रहा है, कितना मिल रहा है। देख इसमें अगर एचपीआई वाले क्वेश्चन सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ठीक है, 120 हो जाएगा। भाई। टाइम पीरियड 1 पे एचपीआई 1 निकालता है। हम्म 40 रुपीज का शेयर था, ठीक है, और हो कितने का, 50 रुपए का, तो 50 माइनस 40 प्लस 1 रुपए डिविडेंड बाय 40, 11/40 इंटू 100 में बताना कितना आया, 27.5 1.5. 27.75 या 27.5, सॉरी, 27. है ना। Yes. एचपीआर 2 निकालते हैं। एचपीआर 2 कितना है, दो शेयर, 60. तो 120 माइनस 100 प्लस 2 रुपीज का डिविडेंड डिवाइड बाय बेस। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी मेरी, 100 ही थी, 100. इंटू 100 कितना हुआ, 22%। तो 1.275 इंटू 1.22 कितनी वैल्यू आई बताना। 1.55. कितना, 1.55. बस। अब कैलकुलेटर पे क्या करना है, पीवी 100, 100 पीवी 0 पीएमटी 2 एन, और एफवी कितना आया, 100.55, No, 62.22. तो 162.25 है ना। अरे यार, दो बेसिक कैलकुलेशन नहीं बताई जा रही तुम लोगों से। 100 इंटू 1.275 इंटू 1 पॉइंट, कितना है, तो ये 22। सर अपन 100 क्यों ले रहे हैं, अपन 40 लेंगे ना। अरे यार, ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। ओके ओके सॉरी, हाँ 162.22. $24.7 is my answer, option A. Clear?
मदर विवेक मेरा क्लियर? भी यही आया है लेकिन पीछे गलत दे रहा हूँ। पीछे इसका सोल्यूशन गलत है, एक्चुअली गलत है पीछे सोल्यूशन, ठीक है, तो देखने की जरूरत नहीं है वो, पीछे वाला सोल्यूशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक वी शैल पॉज द क्लास ओवर हियर फॉर नाउ, ठीक है। वैसे मोटा मोटी चैप्टर दोनों खत्म हो चुके हैं। आई शैल अपलोड द क्वेश्चन बैंक सेम ड्राइव पे, ठीक है। तो वहां पे मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन बैंक है, कैप्टन का वो डाल रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दैट। एंड नेक्स्ट क्लास में अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एंड देन वी शैल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर एज वेल, हार्मोनिक स्टैटिस्टिकल मेजर्स वाला, ठीक है। सर मुझे भी ऐड कर दो उसमें। किसमें, ड्राइव पे तो है एडेड? यस सर, वो पुरानी वाली पे ही होगी। चल ठीक है, इस वाले में मैं कर देता हूँ। सर कल आप क्लास 9 o'clock ले सकते हैं प्लीज? क्या, सॉरी? कल आप क्लास 9 o'clock ले सकते हैं प्लीज? 9 o'clock थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज मॉर्निंग में मुझे जाना है। क्या हुआ बताओ, अच्छा कहीं जा रहे हो क्या? जी सर, कल सुबह मतलब 12:30 1 o'clock तक निकलना है। अच्छा, देखो आई ट्राई, आई कांट कंफर्म, मैं कोशिश करूंगा कि 9 o'clock नहीं, मैं थोड़ा सा 10 o'clock से स्टार्ट कर लूँ इफ पॉसिबल, है ना। 10 o'clock, ठीक। कोशिश करता हूँ 10 o'clock तो कर लूँ, ठीक है। बाकी आई इन्फॉर्म व्हाटएवर इज देयर इन द ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू।